Good morning, everyone. Am I audible to everybody? Yes. Okay. So yesterday we have seen diastereoisomers, that is stereoisomers का first part, cis and trans. ठीक है? Today we have to start with the कहाँ तक हो गया था अपना A part हो गया था, right? We have to start today with the optical isomers. ठीक है? Second part, that is optical isomers. Optical means there will be a mirror images. So these complexes of the molecules are also non-superimposable mirror images. Okay, but they will form enantiomers. You know what are enantiomers? These are also non-superimposable mirror images, and they are having always a chiral center. What is chiral center, Victor? What do you mean by chiral center? An optically active compound. What does it mean? What is chiral center? पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 10 में HDA में भूल गए. You know what is plane polarized light? Plane polarized light means it will, जो normal light होती है वो सभी direction में जाती है. Yes, correct, Kashish. Which is having 4 different functional groups. It's called as chiral center. When carbon is attached to the 4 different functional groups, it is called as chiral center. ठीक है? Correct. Now, this is the normal light which will polarize in all the possible direction. लेकिन जो plain polarized light होती है वो एक ही direction में जाती है. ठीक है? अगर मैंने इसको एक solution में से pass किया which is called as suppose lactic acid, तो ये जब इसमें से pass होगी ना light, तो क्या होगा यहाँ पे? It will not rotate the plane of plane polarized light. It will remain as it is. But if I will take over here a solution of some other compound, say I will take over here, sorry, यहाँ पे अगर मैंने sugar लिया तो नहीं जाएगा, और अगर lactic acid लिया तो वो क्या करेगा, या तो plane को right side में घुमाएगा या तो plane को left side में घुमाएगा. When it will rotate the plane polarized to the right, it is called as dextrorotatory. It is written as D or plus. When it will rotate to the anti-clockwise direction, that time it is called as levorotatory and it is represented as L or minus. समझा? तो ये सेम चीजें जो है यहाँ पर भी ऑब्जर्व की जाती है. Is it clear now?
So it is showing chiral center. When it is passing through the solution, it will rotate the plane polarized light either to the direction of clockwise or anti-clockwise. When it rotates to the clockwise direction, it is called as dextrorotatory, and when it rotates to the anti-clockwise, it is called as levorotatory. इतना समझा सबको? Any questions so far? मिस वो रोटेट मतलब क्या होता है? जब ये लाइट इसमें से पास होती है तो लाइट की प्रॉपर्टी होती है ना, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट विल रोटेट ऐसा थोड़ा सा. तो अगर ये मेरा हाँ कंपाउंड मिस बराबर. ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ही वो इस प्लेन को रोटेट करेगा. जैसे कि इसने रोटेट किया, लैक्टिक एसिड ने रोटेट किया, ठीक है. लेकिन अगर मेरा जो कंपाउंड है इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट विल नॉट रोटेट. तो कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है कैसे देखा जाता है? यू हैव टू पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू दैट सॉल्यूशन. अगर आपको दिखता है, वो अपने को ऐसे नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगा, उसकी मशीन वो सब होती है. तो अगर वो बिल्कुल रोटेट नहीं करता, जैसे इस केस में देखो बिल्कुल ऐसे का ऐसे है, तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरा जो शुगर है इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. इनएक्टिव मतलब उसने उसको रोटेट ही नहीं किया. अपने लैक्टिक एसिड लिया, इट विल रोटेट आइदर टू द क्लॉकवाइज और टू द एंटी क्लॉकवाइज, कहीं पर तो घूमा, मतलब इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. इतना क्लियर बच्चों? इस मतलब वो रोटेट करता है ना उसको, रोटेट लाइट. करता है ये अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो रोटेट करेगा, इनएक्टिव होगा तो रोटेट नहीं करेगा. तो कोई भी कंपाउंड एक्टिव है या इनएक्टिव है कैसे पता करते हैं? लाइट पास करने का उस सोल्यूशन में से. समझा? नहीं समझा? हेलो हेलो समझा मिस. समझा मैम. ये यश किधर गया? इसको क्या हो गया? समझा ना कैसे होता है वो? ठीक है चलो. अभी हम लोग क्या हाँ मिस. पढ़ेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. एक्चुअली बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, खाली मिरर इमेजेस बनाने का बस. तो वी विल स्टडी नाउ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन octahedral complexes. अभी देखो, मैं अगर कंपाउंड लेती हूँ CO EN thrice 3+, what is the coordination number here? What is the coordination number? 6. 6. Very good, because it is bidentate ligand. इसलिए octahedral हुआ ना. Coordination number is 6, so it is octahedral because it is bidentate ligand. अब इसका कैसे आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? खाली मिरर इमेज बनाने का. CO, ठीक है, ये आपका EN इस साइड है, बताया था कल मैंने, EN की वजह से ज्वाइंट होता है, ठीक है. दिस इज योर अनदर EN एंड दिस इज योर थर्ड वाला EN. ये हो गया आपका एक मिरर इमेज. अभी बनाएंगे इसका, so we are going to put a mirror in between and we will get, कैसा आ जाएगा अभी बोलो? CO, ये EN इधर आएगा ना, एग्जैक्टली ऐसा, ठीक है. फिर ये नीचे ऐसे जाएगा EN और ये एक इधर जाएगा EN. दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव. तो अभी ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इट इज D, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इट इज L. हो गया. कितना इजी था, ठीक है. Now they have given octahedral complexes which exist both geometrical as well as optical isomers. मतलब ऐसा एक कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी दिखाता है और ऑप्टिकल आइसोमर भी दिखाता है. ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब बोलो जल्दी, सिस एंड ट्रांस, बराबर. एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब which is giving you these mirror images also. तो उस कंपाउंड का नाम क्या है? यहाँ पे लिखती हूँ देखो, ठीक है. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स existing both geometric and optical isomers. तो वो कंपाउंड का नाम है PbCl2 En twice 2+. सबसे पहले तो मुझे इसका ये बताओ, IUPAC नेम बताओ. व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जल्दी. What is the IUPAC name of this compound? और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो भी बताओ.
चलो बोलो। डाइक्लोरो डाई इथाइल इथिलीन डायमाइन प्लेटिनम डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाई इथिलीन डायमाइन। डाइथिलीन लिखेंगे उधर। हाँ नहीं बिस डाइथिलीन बिस डाई बिस 20 लिखेंगे ना, हाँ 20 बराबर। आगे बराबर है। प्लेटिनम हम्म। इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर -2 चार्ज है, इसके ऊपर भी -2 चार्ज है, मतलब प्लस -1 -1 -4 2 आ जाएगा ना। हाँ यस मैम। प्लेटिनम 2 आयन, करेक्ट, वेरी गुड। अभी देखो इसका मिरर इमेज कैसे आ गया ये है आपका सिस आइसोमर, यस और नो? सिस आइसोमर है, यस और नो? देखो सिस सेम साइड पे, ये भी सिस है, यस इसका मिरर इमेज। अब इसका ट्रांस भी बना सकते हैं, इधर बनाती हूँ ट्रांस। हाँ, तो ट्रांस कैसे हो जाएगा अभी? इट विल बी पीटी सीएल सीएल EN here and EN here, समझा? तो यहाँ पे आ जाएगा +2, दिस इज ऑल्सो +2 एंड दिस इज ऑल्सो +2। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसने सिस भी बताया, सिस का उसने ऑप्टिकल आइसोमर बताया एंड ट्रांस भी बताया। अभी देखो अगर ट्रांस का मैं मिरर इमेज बनाऊंगी तो आपको लगता है कि मिरर इमेज आएगा? सेम ही आएगा ना? मिरर यस इमेज में मैम। कुछ फर्क रहने वाला है? कुछ नहीं। इस केस में तो मिरर इमेज में कुछ तो फर्क है, समझ आ गया? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो दीज काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पे लिख दू स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो enantiomers। क्यों नहीं दिखाते enantiomers? बिकॉज दे हैव मिरर प्लेन एंड एक्सिस प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि उनके बीच में से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होती है। सपोज ये मेरा स्क्वायर प्लेनर है, तो उसके बीच में पास होएगा तो एग्जैक्टली हाफ हो गया ना। इसके बीच में से लाइन पास होगा तो एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे का सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो जाएगा। दैट इज वाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। आई होप सबको ये समझ आ गया अच्छे से। एनी क्वेश्चन इन ऑप्टिकल आइसोमर्स? वापस से देखते हैं। What are optical isomers? Again, I'm repeating. Huh? Optical means mirror. These are the complexes which are showing non-superimposable mirror images are called as enantiomers. These are generally observed with the chiral center. Okay? Now, enantiomers are generally having identical properties, but they are having different response in the plane polarized light. So their optically activity can be measured in terms of this plane polarized light, by using this plane polarized light. If they are passing through the plane polarized light, oh sorry, if plane polarized light is passed through them, if they will not rotate the plane, means it is optically inactive. और अगर rotate करेगा either to the clock or to the anti-clockwise direction, that time it is called as optically active compound. अगर clockwise घूमता है right side पे, so it is called as dextrorotatory. और अगर left side में घूमता है anti-clockwise में, so it is called as levorotatory. ठीक है? After that we have seen ऑप्टिकल आइसोमर इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे आपको दिखा होगा अच्छे से कि ये बस ऑक्टाहेड्रल है, इसका मिरर इमेजेस आ गया तो हो गया। फिर एक ऐसा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी दिखाता है और ऑप्टिकल आइसोमर भी दिखाता है। आपको एग्जाम में पूछेंगे ऐसे, ड्रॉ द ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर दिस, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर दिस। तो ये देखो, ये इसका सिस है, इसका मैंने मिरर इमेज निकाला, so it is showing optical isomers। और इसका ये रहा ट्रांस, ट्रांस का आई कैन नॉट ड्रॉ दी ऑप्टिकल आइसोमर क्योंकि सेम आएगा। एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो enantiomers because they have mirror plane and axis of symmetry। axis of symmetry मतलब अगर मैंने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिया और इसे बीच में से कट किया तो क्या होगा? ये फोल्ड हो जाएगा। इधर से कट किया तो ये फोल्ड हो जाएगा। तो सेम सेम दिखता है, सेम सेम नहीं दिखना चाहिए। दे शुड नॉट बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। मतलब मैंने इसको अगर उठाया ऐसे और इसके ऊपर रखा तो ये 2 क्लोरीन इधर आएगा, ये 2 क्लोरीन इधर आएगा ना। हम लोग कैसे बनाते हैं? मछली जल की रानी कैसे हाथ रखते हैं? ये अंगूठा इधर जाता है, ये अंगूठा इधर जाता है ना, तो दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। लेकिन अगर आप नमस्ते करते हो तो दैट इज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। आया समझ में अच्छे से? ऑप्टिकल आइसोमर्स
Any question so far? मिस वो Any ट्रांस में question? क्यों नहीं बना था? ये देखो ना, ट्रांस में इसका मिरर इमेज निकालो, यहाँ पे मिरर रखो, सेम ही दिखेगा ना। ENA किधर रहेगा, ENA किधर रहेगा, CL इधर रहेगा, CL इधर रहेगा, सेम दिखेगा, हाँ मिस। है ना, इसलिए वो ट्रांस नहीं बनाएगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? चलो लिखो, हेडिंग लिखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो लिखेंगे अभी फटाफट, लिखो ऑप्टिकल आइसोमर्स, एनांशियोमर्स। बोलो, एटलीस्ट से यस और नो रिप्लाई। Yes, ma'am. हाँ लिखो, पॉइंट नंबर 1, the complexes or the ions are the complexes or the ions that are non-superimposable mirror images. The complexes or ions that are non-superimposable mirror images of each other are called as enantiomers. Are called as enantiomers. Point number 2. The non-superimposable mirror images are chiral. The non-superimposable mirror images are chiral. Point number 3. The enantiomers that rotates plane of plane polarized light. The enantiomers that rotates plane of plane polarized light to right, मतलब clockwise, to right, that is clockwise, is called as dextroisomer. ये रहा dextroisomer. And the other that rotates the plane to the left, and the other that rotates the plane to the left, that is anti-clockwise, to the left, that is anti-clockwise, is called as levoisomers. Is called as levoisomers. Heading लिखो, number 1, optical isomers in octahedral complexes. Optical isomers in octahedral complexes. तो ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, दोनों ड्रॉ करो फटाफट। याद से इधर पे +3 है, इधर पे भी +3 है। पहले इतना ड्रॉ करो, फिर मैं कैमरा ऊपर करती हूँ। दिख रहा है ना, यहाँ पे EN है। हाँ एक मिस। मिनट।
Done. Okay. Next is octahedral complexes existing both geometric and optical isomers. Octahedral complexes existing both geometric and optical isomers. तो ये सिस है, ये ट्रांस है और ये ऑप्टिकल है. I hope everybody is getting it properly. मैम वो सेंटेंस रिपीट करें. कौन सा वाला? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एक्सिस्टिंग. Both geometric and optical isomers. ये क्या लिखा है ना इधर? Octahedral complexes existing both geometric and optical isomers. नहीं दिख रहा है क्या? ये क्या है? देखो लिखा है इधर. पहले सिस ड्रॉ करो अच्छे से. मिस कैमरा ऊपर करो ना जरा. Okay, done. Write down the last sentence. बोलो. Square planar complexes do not show enantiomers because square planar complexes do not show enantiomers because they have mirror plane because they have mirror plane and axis of symmetry because they have mirror plane and axis of symmetry. चलो अभी मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके दो फटाक से. ड्रॉ enantiomer of CrOx thrice 3 minus. चलो फटाफट शुरू हो जाओ. ये पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ enantiomer and cis and trans isomer of CrH2O2 OX twice minus. चलो आएगा. जैसे अभी किया ना हम लोगों ने थोड़ी देर पहले. पहला वाला देखो COEN थ्राइस कैसे बनाया था, वैसे इसको बनाना है. और इसका पहले सिस बनाओ, सिस का ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाओ और एक ट्रांस बनाओ जैसे पहले किया था वैसे. आएगा? यस और नो? पहले इतना बोलो. डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? यस मैम. जैसे ये था ना वैसे ही बनाना है इसको. उसको वैसे कर्व करके बनाना है क्योंकि ये है ना चिलेटिंग एजेंट है.
डन एवरीवन? ओके चलो आ गया ना सबको अभी कैसे ड्रॉ करते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. एक मिनट. हाँ मेरा पेन. हाँ. Next, we'll start with the next isomers, abhi structural isomers. This is part 2. Structural isomers, which are also termed as constitutional isomers. ठीक है. Structural isomers और constitutional isomers. अभी इसमें होता क्या है? They will possess different linkages. They will possess different linkages, but their chemical formula will be same. That are called as structural isomers or constitutional isomers. अब इसका जो first part है, that is called as linkage isomers. ठीक है. These are generally given by, किससे दिया जाता है? ambidentate ligands. याद है ना ambidentate ligands? बोलो कौन सा था? एक नाइट्रो और एक नाइट्राइटो, thiocyanito and isothiocyanito, right? So I will write down here. देखो आप खुद ही देखो, समझ में आ जाएगा. CONH3 5NO2 2+ and दोनों लिखना पड़ेगा ना. CONH3 5 सॉरी ONO2 2+. क्या डिफरेंस दिख रहा है? Can you see here? It is cobalt attached with the nitrogen and your cobalt is attached to the oxygen. इसको बोलते हैं linkage isomers. आया समझ में? These are the isomers when formed when the two atoms attached to the different donor groups. You can see over here. The isomers are formed when the ligand has two different donor atoms. देखो ना नाइट्रो के पास दो डिफरेंट है ना, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. So it is called as linkage isomer. समझा? फर्स्ट पार्ट समझा? क्या हुआ तुम लोग? रिप्लाई तो करो बच्चों. Yes, miss. What I said, what is linkage isomer? It is shown by ambidentate ligand. If your donor atom, that is the ligand, is having two different sites for the attachment, means nitro is having nitro group also, that is N also, and oxygen also. So it is called as linkage isomer. Exam में कैसे देते? They will give you this and they will ask you what type of structural isomer it is showing. You can see यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे ONO है, मतलब ये कौन सा आइसोमर हो गया? लिंकेज आइसोमर हो गया. Is it clear, Heli? Heli understood this? Okay. Next is ionization isomers. ठीक है. अब देखो आयोनाइजेशन में क्या हो रहा है, आप लोग ये मुझे बताना. दिस इज CONH3 5SO4Br and CONH3 5BrSO4. बताओ क्या हुआ इसमें? What difference you are observing? लिगेंड्स बदल गए ना. वेरी गुड वेरी गुड. ये देखो यहाँ पे सल्फेट ये बाहर आगे अंदर बाहर हो गया. So ionization involves the exchange of the ligand between the coordination and ionization sphere. Am I right? There is exchange of ligand between coordination and ionization sphere. यहाँ पे देखो सल्फेट पहले ionization sphere में था, बाद में वो coordination sphere में था, बाद में वो ionization में आ गया. ये पहले ionization में था, बाद में coordination में आ गया. तो इसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमर्स. ठीक है. चलो अभी मैं तुम लोग को और नेक्स्ट वाला बताती हूँ. वी विल राइट डाउन दिस इन डिटेल, डोंट वरी. नेक्स्ट इज, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. ठीक है.
देखो अभी इसमें क्या होगा, CO NH3 6 Cr CN6 and CO CN6 Cr NH3 6। बोलो क्या दिख रहा है इधर डिफरेंस? एक्सचेंज हो गया लिगेंड। एक्सचेंज हो गए मेटल्स। यहाँ पे पहले अमोनिया था, अभी साइनाइड आ गया, यहाँ पे साइनाइड था, यहाँ पे अमोनिया आ गया। देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगैंड्स, पूरा कंप्लीट एक्सचेंज हो गया ना, इंटरचेंज ऑफ लिगैंड्स बिटवीन दी cationic and anionic sphere of the metals, so it is called as coordination sphere। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट लास्ट वन, solvate isomers or they are also called as hydrate isomers। हाइड्रेट कब यूज करेंगे? व्हेन वाटर इज यूज्ड। देखो अभी कैसे होगा, CrH2O 6 Cl3। अब इसके बाद क्या बन जाएगा ये, CrH2O 5 Cl2H2O। आप लोग देख के बताओ कि क्या होगा, ठीक है, क्या हो रहा है। CrH2O 4 Cl2Cl2H2O, then CrH2O 3 Cl3 3H2O। बताओ क्या हुआ? हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा अंदर रहा है से और बाहर क्लोरीन गया। अंदर आ यस, पानी क्या कर रहा है, इसको रिप्लेस कर रहा है ना। एक और वाटर बाहर गया, क्लोरीन अंदर आ गया, सॉरी क्लोरीन अंदर आ गया। फिर एक और वाटर बाहर गया, एक और क्लोरीन अंदर आ गया। एक और वाटर बाहर गया, तीनों के तीनों क्लोरीन अंदर आ गए। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज सिमिलर टू द आयनाइजेशन, बट हियर वी आर यूजिंग वाटर which is directly attached to the metal, so it is called as solvate isomers or hydrate isomers। इजी था एकदम, yes or no? अभी एग्जाम में कैसे देते हैं पता है, they will give you this, suppose they will give you this and they will ask you what type of structural isomers it is showing, so it is showing this type of structural isomer, ionization। अगर आपको पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन का पॉइंट चेंज दिखता है तो इट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। पानी अंदर बाहर हो रहा है तो सॉल्वेट आइसोमर्स। अगर यहाँ पे दो अलग अलग लिगैंड के साइड्स दिख रहे हैं तो इट इज लिंकेज आइसोमर्स। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल आइसोमेरिज्म था। समझ आया सबको अच्छे से? एनी क्वेश्चन इन दिस Yes. फोर, linkage, ionization, coordination and solvate isomers, ये है आपका structural isomers। चलो लिखो हेडिंग फटाफट, राइट ऑन द हेडिंग, किधर गया, structural isomers और constitutional isomers। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों आइसोमर्स का, दोनों भी, जो पहले सिखाया ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल वो, और ये स्ट्रक्चरल, तीनों। चलो बोलो, they have different linkages, they have different linkages among their constituent atoms, among their constituent atoms, but different chemical formula, but oh sorry, but same chemical formula, sorry मैं क्या बोली, but same chemical formula। हो गया, but same, इसे एक बार रिपीट करो। okay, they have different linkages among their constituent atoms, but same chemical formula, but same chemical formula। अब लिखो फर्स्ट पार्ट, linkage isomers, linkage isomers। Write down, these are formed when
These are formed when ligand has these are formed when ligand has two different donor atoms. Ligand has two different donor atoms. ब्रैकेट में लिखो ambidentate ligands. Ambidentate ligands. लिखो एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल दिस वन. यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाइट्रो. यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो. तो ये दोनों लिंकेज आइसोमर्स है ना? यस, ये दोनों लिंकेज आइसोमर. तो एक ही लिखोगे तो कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दोनों लिखना पड़ेगा ना. यू हैव टू राइट डाउन बोथ. ये NO2 से अटैच्ड है, ये ONO से अटैच्ड है, तो यू हैव टू राइट डाउन बोथ. तो तुम लोग को लगेगा ये और ये अलग अलग एग्जाम्पल है, ये पूरा एक एग्जाम्पल है. एकदम इजी है समझ. डिफिकल्ट लगा क्या तुम लोग को? हो गया क्या बच्चों? हाँ मैम. ओके, नेक्स्ट हेडिंग, आयोनाइजेशन आइसोमर्स. Write down. They involve exchange of ligands. They involve exchange of ligands between coordination sphere and ionization sphere. Between coordination sphere and ionization sphere. Write down the example. पेंटामाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड. और वो वाला क्या हो गया? पेंटामाइन ब्रोमो कोबाल्ट 3 सल्फेट. Once you're done, please let me know. मिस उसका नाम भी लिखना है? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ मैंने बताया कि तुम लोग भूल नहीं जाओ IUPAC. चलो नेक्स्ट हेडिंग, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. They show interchange of ligands. They show interchange of ligands between cationic and anionic spheres. Between cationic and anionic spheres of Sorry. different metal ions. Cationic and anionic spheres of different metal ions. तो ये है आपका cationic sphere, ये है anionic, और अब ये क्या हो गया? ये cationic हो गया और ये anionic. Cn माइनस है ना, इसके लिए anionic, और अमोनिया न्यूट्रल है तो उसको cationic. ठीक है, लिख लो ये एग्जाम्पल फटाक से. यश प्लीज म्यूट योर सेल्फ.
डन. चलो लास्ट वन. सॉल्वेट आइसोमर्स और हाइड्रेट आइसोमर्स. सॉल्वेट आइसोमर्स और हाइड्रेट आइसोमर्स. Write down. These are similar to ionization isomers. These are similar to the ionization isomers. Full stop. There is exchange of ligands between ionization sphere and coordination sphere. There is exchange of ligands, exchange of water between ionization sphere and coordination sphere. लिख लो एग्जाम्पल. मिस तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ वाटर एक्सचेंज होगा ना, सॉल्वेट डिसोल्यूशन. और यहाँ पर कोई भी आपका किधर गया, कोई भी अलग टाइप के लिगैंड्स एक्सचेंज होंगे. यहाँ पे वाटर इन्वॉल्व है, दैट इज व्हाट इज सॉल्वेटेड. समझा. लिगैंड इसके साथ कोई भी रहने दो बाहर, लेकिन वाटर 110% रहेगा ही. यहाँ पर जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई अलग अलग लिगैंड्स भी हो सकते हैं. ओके. हाँ मिस. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड. आइसोमर्स एकदम अच्छे से रट डालो पूरा आइसोमर्स जो लिखा है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट. डन बच्चों. Any questions so far? Any doubts? मैम वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर सिखाओ फिर से. देखो, what is coordination isomer? किधर गया? ये रहा. We can see cobalt, we can see chromium. Now, first of all, cobalt is attached with ammonia and chromium is attached with cyanide. अभी क्या हो रहा है, हमारे ligands का interchange हो गया. We can see now cobalt is attached with cyanide and this is attached with and chromium is attached with ammonia. There is interchange of ligands, so it is called as coordination isomer. मतलब पूरा का पूरा coordination compound ही change हो गया ना. That is what is called as coordination isomer. Okay मैम. Any other questions बच्चों? कुछ और पूछना है? आगे बढ़े. चलो अभी आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मिस छोटा वो सा. सॉल्वेट, मिस वो सॉल्वेट का वो एग्जांपल बताओ हाँ. ना, वो नहीं समझा. कौन सा एग्जाम्पल? ये हाँ मिस. देखो कितने वाटर है. How many water are there? 6. कितने क्लोरीन है? 3. एक वाटर को बाहर निकाला, एक क्लोरीन को अंदर डाला, तो वाटर 5 हो जाएगा. और क्लोरीन अंदर चला गया तो बाहर 2 हो जाएगा. यस और नो? एक्सचेंज हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप में एक और वाटर बाहर निकालो तो 4 वाटर हो जाएगा. एक और क्लोरीन अंदर गया तो 2 हो गया. थर्ड स्टेप में पूरे के 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए और तीनों क्लोरीन अंदर आ गया. इट इज कॉल्ड एज सॉल्वेट आइसोमर्स. अब और तो नहीं कर सकते ना आगे, क्योंकि बाहर क्लोरीन ही खत्म हो गया. कैन यू डू दैट? खत्म हो गया ना क्लोरीन. यू कैन अच्छा, नॉट मतलब इंटरचेंज. बाहर का अंदर आ सकता है और कोऑर्डिनेशन का बाहर जा सकता हाँ, यस. पर इसके बीच में किसका एक्सचेंज होगा? देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ ओनली वाटर. देखो वाटर एक्सचेंज कर रहा है, यहाँ पे वाटर नहीं है. ये दोनों सेम है. देयर इज एक्सचेंज बिटवीन आयनाइजेशन स्फीयर एंड
एंड कोऑर्डिनेशन भी है, लेकिन ये कोई भी अलग टाइप के लिगैंड्स हैं और यहाँ पर कंपल्सरीली वाटर ही रहता है, वाटर ही एक्सचेंज करता है, व्हाट इज कॉल्ड एज सॉल्वेट आइसोमर्स। अभी समझा? यस मिस। आगे बढ़े अभी बच्चों, चलो। और किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? पूछ लो, अभी क्लियर कर लो, बाद में सब भूल जाएंगे, फिर याद नहीं रहेगा क्या पढ़ा था, क्या सिखाया था। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। नीट जेडब्ल्यू में भी बहुत आते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले लो, सीईटी वीटी में भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ना ये पूरा नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे ना, तो मे बी तब तक ये चैप्टर हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, मतलब ये मंडे टू नेक्स्ट संडे तक मे बी। चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक सेकेंड है जरा। We will start with the stability of coordination compounds. अब आपका कंपाउंड बहुत स्टेबल है, कैसे पता चलेगा? देयर शुड बी सम कैलकुलेशन ना। कैसे हम लोग लिखते थे कि ए वैल्यू ग्रेटर हो गया तो एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, के बी वैल्यू स्मॉलर हो गया तो आपका जो बेस है वो वीक होगा, ठीक है? तो वैसे ही here also we need something which will tell us whether my coordination compound is stable or not, ठीक है? So it is governed generally by a factor called as equilibrium constant of ligand. The stability of the coordination compound can be explained by the stability constant. उसको बोलते हैं stability constant which is given by K, ठीक है? अब आप सबको पता है कि मेटल्स आर, कौन सा बॉन्ड बनता है इनके बीच में? मेटल लिगैंड बॉन्ड बनता है, बराबर? ligands are donors, so ligands are electron rich, metals are acceptors, so these are electron deficient, so metals are called as Lewis acids, याद आ गया? and ligands are called as Lewis bases. I hope this is clear और याद होगा आपको। अब हम कैसे करेंगे? कंसिडर, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं। कंसिडर द equilibrium for metal ligand interaction, for metal ligand interaction। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मेटल जो कि मेरा पॉजिटिवली चार्ज है, ए मतलब कोई भी हो सकता है ना, +1 +2 +3 +4 वॉट एवर, एंड n नंबर ऑफ लिगैंड विच इज x माइनस। n लिया क्योंकि 2 3 4 5 6 हो सकते हैं ना, ये ले लिया। देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम, तो मेरा कंपाउंड कैसे बनेगा अभी? MLN रेज टू A प्लस, और इसी के साथ रहेगा हमारा प्लस, ये A प्लस इधर आ गया, प्लस NX माइनस, ठीक है? ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस पे? तो K इज इक्वल्स टू, याद है अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन दिस। तो पहले क्या लिखेंगे? ऊपर MLN A प्लस प्लस NX माइनस डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे अभी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ma प्लस एंड NLX माइनस, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब क्या बोला है? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka, greater the value of K, क्या होगा? more stable is the complex, समझा? greater the value of K, more stable will be the complex, समझा? अब यहाँ पर मैं कुछ K वैल्यूज देती हूँ, आप उसको अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। 5.0 into 10 raised to 33, 2.0 into 10 raised to 27, 3.7
into 10 raised to 30. We have to arrange them in increasing order of their stability. समझा? ये समझा कि नहीं? पहले इतना बोलो. Stability of coordination compound can be expressed in terms of stability constant. फिर ये तो पता है तुम लोगों को. एक मिनट ना, मैं जरा पावर चार्जिंग में रखती हूँ, मेरा बैटरी लो है. जस्ट गिव मी अ सेकंड. तब तक लिखो हेडिंग. राइट ऑन द हेडिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये समझा कि नहीं समझा? पहले इतना बोलो. क्लियर? स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोई आज रिप्लाई मिस ही ये नहीं कर एम रहा ढंग से, सब सोए हैं. मिस वो एम और ये इसका बताओ ना एक बार. एम क्या है? मेटल. ठीक है. एल क्या है? लिगैंड. मेटल के लिगैंड. ऊपर हाँ. कितना चार्ज रहता है? प्लस. देखो यहाँ पे प्लस लिखा है. अभी प्लस कौन सा भी हो सकता है ना. यस. अगर मैंने सोडियम लिया तो Na प्लस होएगा. अगर मैंने कॉपर लिया तो Cu प्लस होएगा. अगर मैंने एल्यूमिनियम लिया तो +3 होएगा. इसके लिए मैंने क्या लिखा वहाँ पे? A+. और लिगैंड का n नंबर हो सकता है. 2 लिगैंड्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना 2 3 4 5 6. इसके लिए n लिखा. अब उसके बाद क्या हो जाएगा? ये मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स बन गया और ये एक्सेस जो था वो ऊपर लिख दिया. खत्म. और फिर क्या करेंगे? इसका लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे. तो दिस डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट रिएक्टेंट. हम लोगों ने किया था ना चैप्टर नंबर 2 में. लॉ ऑफ मास एक्शन, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट. याद आया? आयनिक इक्विलिब्रियम में किया है. देखो, भूल गए क्या? हाँ मिस, तो वो के और ये के सेम है. नहीं नहीं, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट. अभी हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं ना. तो कांस्टेंट का खाली नाम चेंज कर देने का. देखा जाए तो सेम ही है. तो ये क्या हो जाएगा? अभी जैसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो क्या बोला है? जितना बड़ा मेरा कैलकुलेशन करने के बाद जितना बड़ा ये वैल्यू आएगा उतना स्टेबल मेरा कॉम्प्लेक्स रहेगा. जितना छोटा ये वैल्यू आएगा उतना अनस्टेबल मेरा कॉम्प्लेक्स रहेगा. बस. सो दिस इज जस्ट टू मेजर whether my compound is stable or not. क्योंकि कंपाउंड तो तुमने बना दिया, लेकिन वो स्टेबल है या नहीं है वो भी तो होना चाहिए ना. बना के छोड़ देने के बाद 5 मिनट के बाद वो गायब हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल. समझा? तो इट शुड बी स्टेबल. दैट इज व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट दिस. थ्योरेटिकली नहीं, एक्सपेरिमेंट. ये थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटली तो अलग ही रहता है. अभी समझा सबको? यस और नो? यस. लिखो. यस मैम. स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. लिखो. Their stability is generally expressed in terms of stability constant K. Their stability is generally expressed in terms of stability constant K. अब ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, लिख लो. मेटल्स टू लिगैंड्स. तो डेफिशिएंट है, ये रिच है, ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है. वो आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है पूरा ऐसे लंबा सा स्टेटमेंट. तो आप लोग ऐसे शॉर्ट में लिख लो. हुआ? उसके बाद ये लिखो कंसिडर द इक्विलिब्रियम फॉर मेटल लिगैंड इंटरैक्शन. और ये के तक पूरा कॉपी करो. दिख रहा है क्या बच्चों ठीक से? यस मिस. ठीक है. के तक पूरा कॉपी करो, इधर तक, ये इधर तक.
Once you're done, please let me know. मैम नीचे करो। दिख रहा है? हाँ दिख। अरे वो मेरे ना स्टैंड का जो क्या बोलते हैं पैर है ना, पैर वो बहुत छोटा है, तो फिर मैं ऊपर पकड़ती हूँ तो फिर वो हिलता रहता है, इसलिए मैं नीचे रखती हूँ जनरली, तो तुम लोग को ब्लर दिखेगा हिलेगा तो। चलो ये हो गया। अब लिखो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के more stable is the complex. Greater the value of k, more stable is the complex. लिखा? हाँ मैम। चलो अभी तुम लोग को इसको अरेंज करना है, इसको नंबर दे देती हूँ मैं। नंबर 1 2 3 4। You have to arrange them in the increasing order of their stability. Increasing order मतलब छोटे से बड़ा, सबसे ज्यादा स्टेबल है वो सबसे लास्ट में आएगा। देखो वैल्यूज और आंसर करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा। सबसे जो कम स्टेबल रहेगा वो पहले लिखेंगे, और सबसे अच्छा वाला स्टेबल जो रहेगा वो सबसे लास्ट में लिखेंगे। 10 के पावर्स भी देखो ठीक से। मैम वो थर्ड वाला 2.0 है ना? 2.0 यस। ऐसे 2-2 3-3 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं पता है एग्जाम्स में। अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैं तुम लोगों को आधा ऐसे थोड़ा बहुत नीट टाइप के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाती हूँ, तुम लोग को फिर थोड़ा इजी जाएगा। चलो कुछ लोगों का आंसर आ गया है मेरे पास। परफेक्ट आंसर दिवेश, वेरी गुड। तो दिवेश ने आंसर कर दिया। देखो कन्हैया करेक्ट आंसर, करेक्ट। प्रियंका वेरी गुड। दोनों प्रियंका ने प्रियंका बरगजे आंसर लिखो। दिवेश उल्टा बोला क्या तुमने? सबसे छोटा कौन है इनमें? 10⁻18 फर्स्ट, हाँ, फिर ये आएगा थर्ड, 1 3 फिर थर्ड। 4 एंड देन 2। फोर्थ एंड ये सेकंड। नंबर्स में यस करेक्ट। दिवेश शायद तुमने उल्टा लिख दिया। हाँ कशिश करेक्ट। समझा सबको कैसे अरेंज करते हैं? इट्स वेरी सिंपल। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखने का। अगर मैंने डिक्रीजिंग बोला होता तो पूरा रिवर्स कर देने का, उल्टा। इसलिए पहले खुद से बातें करने का। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो जब से सबसे अनस्टेबल है वो पहले लिखेंगे, जो सबसे स्टेबल है वो बाद में लिखेंगे। चलो डाउट है कुछ यहाँ तक? अब आप नो मैम। पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मेरे को लगता है यहाँ तक ही पढ़ाती हूँ मैं आप लोग को, फिर वो सब थ्योरीज वेरीज सब नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी के लिए क्या होना जरूरी है और क्या नहीं होना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू सी। चलो we will start with factors affecting the stability of complexes. ठीक है, इसमें पहला आता है चार्ज। ओ शिट मेरा पेन ही खत्म हो गया, एक मिनट ना बच्चों।
फर्स्ट वन इज चार्ज टू size ratio of metal ion. चार्ज टू साइज रेशियो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ चार्ज टू साइज रेशियो फॉर एनी मेटल कॉम्प्लेक्स टू बी वेरी वेरी स्टेबल, ठीक है। द चार्ज टू साइज रेशियो शुड बी हायर, मतलब चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। जितना ज्यादा चार्ज उतना स्टेबल मेरा कॉम्प्लेक्स, जितना कम चार्ज उतना अनस्टेबल मेरा कॉम्प्लेक्स। जितना छोटा साइज उतना ज्यादा स्टेबल, जितना बड़ा साइज उतना कम स्टेबल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो व्हाट दे हैव सेड, हायर द चार्ज टू साइज रेशियो स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स, स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। समझा। अभी देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, Cu2 प्लस Na2 प्लस CO2 प्लस Fe2 प्लस Mn2 प्लस एंड CD2 प्लस। These are the stability order of this. It is called as, एक सीरीज है, इसको बोलते हैं इरविंग विलियम ऑर्डर फॉर द स्टेबिलिटी। देखो इस पे सबके साइज, सबका चार्ज सेम है, लेकिन सबसे छोटा साइज किसका है, Cu2 प्लस का, इससे सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर आता है निकल, फिर आता है कोबाल्ट, फिर आता है Fe, फिर आता है Mn, बाद में आता है Cd। तो इस सीरीज को क्या बोलते हैं, इरविंग विलियम सीरीज, ठीक है। और अगर मेरा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, सपोज एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में मैंने लिखा FeCN6 4 माइनस एंड FeCN6 3 माइनस, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, कैसे पता चलेगा। देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, x -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू +2, और यहाँ पर आएगा x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3। किसका चार्ज ज्यादा है, बोलो। इसका चार्ज ज्यादा है, फर्स्ट तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। इजी है, ये इजी है कि नहीं, बोलो, है ना। कभी कभार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर के चार्ज देखने का। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CO NH3 6 3 प्लस, और मैंने यहाँ पे लिखा क्या लिखूं, न्यूट्रल लेते चलो, COH2O 4 2 प्लस। अब देखो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इसका चार्ज क्या आएगा, x इज इक्वल टू +3 आएगा, इसका चार्ज क्या आएगा, x इज इक्वल टू +2 आएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल है। समझ आ गया अच्छे से, इजी मिस एकदम। मुझे एक डाउट, हाँ बोलो ना। मिस मतलब हमारा नहीं जिसका एटम साथ, रहता है एक ना, मिनट, हाँ तो हाँ मिस वो हाँ। तो मिस वो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद स्टेबल होता है ना, तो मिस यहाँ पर चार्ज ज्यादा होने के बाद कैसे स्टेबल हो रहा है वो। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, यहाँ पे ऑक्टेट वॉक्टेट कुछ नहीं है। यहाँ पर ये आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ऑक्टेट नहीं इंपॉर्टेंट होता, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज ज्यादा हो रहा है, मतलब अभी देखो मैं बताती हूँ। ये सोडियम है, दिवेश तुम्हारे भी सवाल का जवाब है ये, ठीक है। ये सोडियम है, इट इज 281, एक चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा अभी, Na+, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है कैसा रहेगा, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बाहर 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अभी देखो, हाँ अभी सपोज मैंने यहाँ पे लिखा Mg2+, अभी Mg2+ में क्या था, 2 2 इलेक्ट्रॉन्स गए ना, तो ये आपका न्यूक्लियस का जो साइज है वो और छोटा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, तो न्यूक्लियस इसको टाइट पकड़ के रखता है। तो Mg2+ का साइज Na+ के साइज से छोटा है। अब मैं जाऊंगी अगर Al3 के पास, तो क्या होगा यहाँ पे, 283। तो ये देखो, आप बोलोगे कि मैं सेम तो है, ये भी 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है, ठीक है 28 है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस की जो पकड़ है इसके लिए ये बहुत कम है, यहाँ पर वो उसको और खींच के रखता है, तो इसका साइज +2 हो जाता है, छोटा हो जाता है, और Al3 का साइज और छोटा हो जाता है। अगर इसको दूसरे लफ्जों में बताया जाए, तो देखो मैग्नीशियम 2+ है, तो मैग्नीशियम में से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा फर्स्ट
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर वापस से इसमें से एक और निकलेगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, एल्यूमिनियम में एक निकलेगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर दूसरा निकलेगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा निकलेगा अभी ये 2+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ज्यादा किसको निकल रहा है बच्चों? सिर्फ गिव मी जोशुआ होस्ट बनाओ मुझे, जोशुआ प्लीज मेक मी होस्ट। जोशुआ किधर गया? चलो उसको बोलो। अभी समझा ये? तो यहाँ पे कैसे हो गया? अभी यहाँ पे देखो Mg+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, पहले कहाँ पे था? न्यूट्रल में से इलेक्ट्रॉन निकला तो ठीक था, लेकिन प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो ये क्या करता है उसको पकड़ के रखा है ना टाइट, इसके लिए उसका साइज छोटा हो जाता है। तो जितना बड़ा साइज होगा उतना उसका चार्ज कम होगा, जितना छोटा साइज होगा उतना उसका चार्ज ज्यादा होएगा। अभी समझा? तो यहाँ पे ऑक्टेट वाली चीज नहीं आती है, यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पर आता है चार्ज टू साइज रेशो। तो जितना बड़ा चार्ज उतना छोटा साइज, इसके लिए इसको देखो नीचे लिखा है चार्ज टू साइज रेशो, ग्रेटर द चार्ज स्मॉलर द साइज। अभी समझा दिवेश, यश? यस और कुछ डाउट है? दिवेश तुमको तुम्हारा सवाल का जवाब मिला, मैंने क्या बोला वो ऑक्टेट वाला। ये जोशुआ किधर गया? इज ही देयर और नॉट? मेक मी होस्ट। उधर जाओ, 3 पॉइंट दिख रहा है ना, उधर पे जाके शबाना शेख पे जाके होस्ट करो, मेक होस्ट। ये तो मीटिंग कैसे एंड होएगा? फिर तुम लोग का मीटिंग चलता रहेगा, वो एंड नहीं करेगा। तो ये समझा अभी सबको? तो पहला कंडीशन क्या था? चार्ज टू साइज रेशो बड़ा होना चाहिए, तो आपका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल रहेगा। चार्ज टू साइज रेशो मतलब चार्ज शुड बी ग्रेटर एंड साइज शुड बी स्मॉलर। तो देखो ये सबके साइज क्या है? सबके चार्ज सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, इसलिए ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। और चार्ज का मैंने आपको समझा दिया कि जितना बड़ा चार्ज आएगा उतना ज्यादा मेरा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। क्लियर फर्स्ट पार्ट? ठीक है, ओके। अभी हो गया फर्स्ट पार्ट, चार्ज टू साइज रेशो। सेकेंड पार्ट हम जाएंगे नेचर ऑफ लिगैंड्स। दो ही है फैक्टर्स। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ लिगैंड्स। अभी लिगैंड और कॉम्प्लेक्स बनाने में सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा? अगर मेरा लिगैंड बहुत इजीली दे देगा तो ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं? अगर लिगैंड इलेक्ट्रॉन से नहीं देगा तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? सो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स टू बी मोर स्टेबल, योर लिगैंड should easily donate the electrons. Yes or no? अगर मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आई नीड इलेक्ट्रॉन्स ना। तो पॉइंट नंबर बी इज नेचर ऑफ ligands. Correct? How easily it depends upon how easily the ligand donates the lone pair of the electrons to the central metal ion, that is the basicity of the ligand. समझा? मतलब it depends upon the basicity of ligands. अब मुझे बताओ ligand ज्यादा अच्छा बेसिक होना चाहिए कि वीक बेसिक होना चाहिए? आपको क्या लगता है? ligands are Lewis bases, they are donating the electrons. तो ligands की खासियत क्या होनी चाहिए? अच्छा बेसिक होना चाहिए या वीक बेसिक चाहिए? क्या लगता है? बोलो। अरे एसिडिटी कैसा यश? लिगैंड तो बेसिक है ना, वो एसिड कहाँ से बनेगा? लिगैंड शुड बी गुड डोनर, यस और नो? इट शुड बी गुड डोनर, ये समझा कि नहीं? पहले बोलो। बेसिसिटी भूल जाओ, चलो। अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स बनाना है तो माय लिगैंड शुड बी अ गुड डोनर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बराबर? अग्रीड एवरीबॉडी? यस मिस। हाँ ठीक है। अगर वो गुड डोनर है मतलब वो लुईस बेस है। बराबर? लुईस बेसिस आर
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, मैं तुम लोग को पढ़ा पढ़ा के थक गई, तुम लोग हर बार भूल जाते हो। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, तो वो अच्छा बेस होना चाहिए ना, यस और नो? तो स्ट्रॉन्गर द बेसिसिटी ऑफ ligand, stable is the complex, yes or no? अभी समझा? अगर एसिडिक बोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, लुईस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा वो। यश, एसिडिटी में नहीं जाने का है, बेसिसिटी में ही जाने का है। तो आपका लिगैंड अच्छा बेस होना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्गर बेस। इतना स्ट्रॉन्गर बेस कि बस आते ही फटक से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना फास्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अभी समझ आया? Everybody understood this part? Yes, I ma'am. hope I have explained you properly. कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला है, बेसिसिटी जितना ज्यादा होगा लिगैंड का उतना अच्छा, बिकॉज इट इज अ गुड डोनर। अगर आप उसका बेसिसिटी कम रहेगा, मतलब वो थोड़ा सा वीक बेसिक है, तो वीक बेसिक है मतलब इलेक्ट्रॉन्स उतना इजीली डोनेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको बहुत टाइम लगेगा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ठीक है? सो इट्स बेसिसिटी शुड बी हायर फॉर एनी कॉम्प्लेक्स टू बी स्टेबल। लिखना है ये दोनों फैक्टर्स, लिख लो, चलो शॉर्ट में लिख लो। राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग दी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। आज ये इतना ही सिखाऊंगी मैं, क्योंकि थ्योरीज का खाली इंट्रोडक्शन देती हूँ, ज्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, कल पढ़ेंगे थ्योरीज। कल अपना रिवीजन लेक्चर है 8:30 to 9:30, याद रखना। राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट इज charge to size ratio of metal ions. First is charge to size ratio of, एक मिनट, charge to size ratio of metal ion. लिखो first point, higher the charge to size ratio, greater is the stability, and mark this as very very important. पूरे लाइन को अंडरलाइन करो या तो उस लाइन को बॉक्स बना के रखो। Higher the charge to size ratio, greater is the stability. Point number 2, for divalent metal ion complexes, divalent मतलब जिसके ऊपर +2 चार्ज रहता है, मोनोवैलेंट मतलब जिसके ऊपर +1 चार्ज रहता है, ठीक है? फॉर divalent metal ion complexes, their stability can be shown by, लिखो ये, Cu2 plus, then Ni2 plus, then CO2 plus, then Fe2 plus, then Mn2 plus, then Cd2 plus. It is called as Irving-Williams order. मिस वो क्या था स्टेटमेंट फॉर डाइवेलेंट? For divalent metal ion complexes, their stability can be shown by, कुछ लोग आर को साइलेंट पढ़ते तो आइविंग विलियम ऑर्डर भी बोलते हैं उसको, आइविंग, और आयरविंग, इरविंग विलियम ऑर्डर भी बोल सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया है यहाँ तक। कल हम लोग जो पढ़ेंगे ना मिस वो तो बहुत सबसे ही, ज्यादा कॉपर का है ना हाँ स्टेबिलिटी? हाँ, यस यस। क्यों कॉपर का ज्यादा है? क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। देखो चार्ज सबका सेम ही है ना, तो यहाँ पे चार्ज के बेसिस पे मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती कि कौन ज्यादा स्टेबल है, समझा? अभी सपोज Fe लिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे कॉपर लिया और दोनों का चार्ज सेम आया, तो क्या करेंगे? तो बोलो। उसके साइज देखेंगे। उसके साइज पे जाएंगे। तो साइज के लिए आपको सीरीज याद होनी चाहिए। तो सीरीज में आपको पता है कि कॉपर का साइज सबसे छोटा है, तो कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल रहेगा। समझा? अभी चाहिए तो ये दोनों एग्जांपल लिखना है तो लिख लो।
once you're done please let me know, I will turn the page और last factor भी कर लेंगे. अभी हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा. उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स का. पर बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा तुम लोग मिस वो को. 11th में भी था ना? हाँ 11th में भी था, पर 11th में कैसे था? डायरेक्टली sp sp2 sp3 का एक एक एग्जांपल था. यहाँ पे कैसे करेंगे? दे विल गिव यू अ कॉम्प्लेक्स और बोलेंगे कि उसका स्टेबिलिटी निकालो. तो उसके कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स है मैथ्स जैसा, वो सीख लेने का और हो गया. फिर दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स का तुम लोग ये निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो. कल सिखाऊंगी मैं वो, तुम लोग को मजा आएगा एकदम. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले मैं पूरा सिखाऊंगी क्या कॉम्प्लेक्स निकालना, और बाद में तुम लोग को पोस्टुलेट्स पढ़ाऊंगी तो अच्छे से समझेगा. कितना है, बहुत बड़ा चैप्टर है यार, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा. CFT है, इसके बाद CFT के बाद क्या है? ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. हाँ नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है हो जाएगा, इतना भी नहीं है. अपने चैप्टर्स कितने फास्ट फास्ट हो रहे हैं ना, सब समझ में भी नहीं आ रहा है कि खत्म हो रहा है, चालू किया और खत्म हो रहा है. एक्चुअली रोज रोज पढ़ते हैं ना, इसके लिए जल्दी हो जाता है. और कैसे फिर तुम लोग लिंक्ड में रहते हो ना, कल किया तो आज फटाक से फ्रेश रहता है, भूलते नहीं हो, तो जल्दी जल्दी हो जाता है. चलो हो गया, ये पेज हो गया. कुछ डाउट है इसमें? प्लीज से यस और नो. 5 मिनट बचा है, मुझे नेचर ऑफ लिगैंड भी लिखाने का है, जल्दी बोलो. हो गया? 10 o'clock कर दो ना लेक्चर. अरे बच्चा 10 o'clock में कैसे करूँ अभी, मुझे भी प्रॉब्लम मिस होता हो है गया मॉर्निंग में मेरा लिखे. लेक्चर. उस रिकॉर्डेड लेक्चर पे नहीं भेजते आप? क्या? रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं भेजा आपने? मैं थोड़ी ना भेजती हूँ, वो सर के पास रहता है, मेरे पास नहीं रहता है रिकॉर्ड. और ये जोशुआ देखो मेरे को होस्ट बना रहा भी नहीं है, गया क्या किधर ये घूमने? ए जोशुआ, होस्ट बना रहे मेरे को, कभी से बोल रही हूँ प्यार से, समझ ही नहीं आ रहा है इसको. चलो अभी नेक्स्ट लिखो, नेचर ऑफ लिगैंड्स. मेरे पास नहीं रहता है बच्चों रिकॉर्डेड लेक्चर, वो सर लोग का जो आईडी है ना उस पे, क्लास के आईडी पे सेव होता है, वो मेरे खुद के पास नहीं रहता है. ये क्लास के आईडी पे है, मेरे आईडी पे नहीं है. चलो नेचर ऑफ लिगैंड राइट डाउन, फटाफट लिखो. पॉइंट नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू, एकदम फास्ट लिखो. स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू how easily हाँ एक्चुअली ऐसे ही गड़बड़ है उसका कुछ. तो जोशुआ ने खाली ज्वाइन किया और फोन रख के किधर तो घूम रहा है. हाँ तो क्या था? द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू हाउ इजीली ligand can donate, how easily ligand can donate its lone pair of electrons, how easily ligand can donate its lone pair of electrons to central metal ion, to central metal ion, full stop. Therefore more is the basicity of ligand, more is the basicity of the ligand, more is the stability of ligand, greater will be the stability of complex, greater will be the stability of complex. मतलब आपका ligand बहुत ज्यादा बेसिक होना चाहिए, तब आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा. ठीक है. चलो कल से हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है. यश एंड दिवेश मुझे याद दिलाएंगे. थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस, पेज नंबर
201 से अपने को स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो, कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? ये जोशुआ अभी कल के लेक्चर में बहुत सुनेगा मेरे से, मतलब वो है ही नहीं लेक्चर में। Miss, can we leave the meeting? यस यस यस, नाउ यू ऑल कैन लीव। अभी तुम लोग को ही लीव करना पड़ेगा ऐसे एक एक करके, क्योंकि वो महाराजा तो गायब है, वो पूरा एंड नहीं करेगा, ठीक है। चलो, कल मिलते हैं सेम टाइमिंग 10:30 to 12। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। कुछ डाउट रहेगा तो पूछो कल, ठीक है। वेलकम, बाय दिवेश, बाय बाय प्रगति, बाय कशिश। सब लोग लीव करो, फिर मैं लीव करती हूँ। सब लोग लीव करो बच्चों, देन आई विल लीव, नहीं तो मालूम पड़ा मीटिंग चालू ही रहेगा। जोशुआ का नंबर है तो जरा उसको कॉल करो, बेवकूफ लड़का। उसको बोलो एंड करने मीटिंग, वरना वो रिकॉर्ड नहीं होएगा। श्रुतिका, सिद्धू, प्रियंका, जोशुआ का नंबर है तो जरा उसको कॉल करो। श्रुतिका, श्रुतिका, सिद्धू। अच्छा, लीव करो, चलो तुम लोग। लीव द मीटिंग प्लीज। अरे लीव करो मीटिंग। सिद्धू, लीव द मीटिंग।